Hi everyone, my name is Mishal Bosle and I welcome you all to your own YouTube channel Mishal Bosle. In this video we are going to learn bookkeeping, 12th standard bookkeeping, in which we are going to learn the first chapter, that is Introduction to Partnership and Partnership Final Account. Okay, before starting this video, let me recall some of the things which you have learned in your 11th standard. In 11th standard you have learned about sole proprietorship. When a particular person or a single person does a business, then how he maintain his books of accounts and what are the different procedures of maintaining his books of accounts. Okay, now in 12th standard we are going to learn about partnership. When two or more than 2% does a business, then what are the procedures of maintaining the books of accounts, we are going to learn in this specific video. ओके, सो ज़्यादा समय ना लेते हुए हम लोग वीडियो की शुरुआत करते हैं. ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग शुरुआत करेंगे इंट्रोडक्शन से. ओके, सो लेट स्टार्ट. लेट मी रीड द इंट्रोडक्शन फर्स्ट. The sole proprietor has its limitations such as limited capital, limited managerial ability, unlimited liability, no stability, absence of specialization, etc. Hence, when a business is to be set up on a scale which needs more capital and involves more risk, two or more persons come together to run it. They agree to share the capital, the management, the risk, and the profits of the business. Such mutual relationship based on an agreement amongst these persons is termed as partnership. The persons who have entered into the partnership are individually known as partners and कलेक्टिवली नोन एज फर्म. ठीक है, अब क्या होता है, कैसे होता है, ये मैं आप लोगों को बहुत ही सिंपल एग्जांपल देकर समझाता हूँ. नाउ लेट अस सपोज देयर आर टू पर्सन्स, वन इज पर्सन ए एंड द अदर वन इज पर्सन बी. Okay, now let us take an example. Okay, now let us suppose that there is one person A and person B. Person A is MSc student who has done his masters in science, and person B is MCom student, yani what, he has done his masters in commerce. Now person A has started his own classes. Let us see, he's teaching science. Okay, and person B is teaching commerce. Now person A has capital, person B also has capital, person C has his own place, or say let us see he has own classes. Person B also has his own class, he has his own risk, he has his own managerial ability. Okay, now person B also has his own risk taking capacity, managerial ability. Okay, now all this thing. Now there are some limitations of A's business and there are some limitations of B's business. Now what are the limitations and why the purpose of why they will enter into a partnership firm? Let us see. तो सबसे पहले जैसे पार्टनर ए है फॉर एग्जांपल. ना पार्टनर ए अपने खुद का क्लासेस चला रहे हैं, ठीक है, और पार्टनर भी अपना खुद का क्लासेस चला रहे हैं. अब पार्टनर ए को क्या करना है, अपने बिजनेस को, वो चाहता है कि वो अपने बिजनेस को बहुत बड़े लेवल पर एक्सपांड करे, लेकिन उसके कुछ अपने लिमिटेशंस है. दैट इज, उसकी क्या लिमिटेशंस है, दैट ही कैन ओनली टीच साइंस स्टूडेंट्स, एंड पर्सन बी के लिमिटेशन है दैट ही कैन टीच ओनली कॉमर्स स्टूडेंट्स. अब ये दोनों के भी क्या है, अपने अपने लिमिटेशन है. नाउ अ पर्सन ए एंड पर्सन बी, व्हाट दे बोथ कैन डू इज दे कैन एंटर इनटू अ पार्टनरशिप बिजनेस. यहाँ पर आपको दिख रहा है, दे कैन एंटर इनटू अ पार्टनरशिप. और अब इससे क्या होगा, इफ दे वांट टू एक्सपांड देयर बिजनेस देन दे बोथ कैन एंटर इनटू अ पार्टनरशिप बिजनेस एंड दिस बिजनेस विल हेल्प देम. कि अभी ये क्या होगा, ये साइंस का बंदा है, अब इसको कॉमर्स के साथ में वो कैटर कर पाएगा, कॉमर्स के मार्केट को वो कैटर कर पाएगा, और ये कॉमर्स वाला बंदा है वो साइंस के मार्केट को कैटर पड़ जाएगा अगर ये दोनों एक साथ मिलके बिजनेस करते हैं. बट ऑब्वियस उनका पैसे भी आपस में बढ़ जाएंगे. अब जैसे मान लो इसके पास ये अपने
कैपिटल लेकर आएगा, ये अपने कैपिटल, तो दोनों का बिजनेस जो है वो बहुत ज़बरदस्त एक्सपांड हो पाएगा, ठीक है। उसके बाद में लेट अस सी, इसकी अपनी जगह है, इसकी अपनी जगह है, तो बट ऑब्वियस वो अपने दोनों के भी जगह यूज़ करके बहुत एक 2 ब्रांच खोल सकते हैं, 3 ब्रांच खोल सकते हैं। तो ऐसे ये दोनों की भी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी अब बढ़ जाएगी, क्योंकि पहले सिर्फ एक अकेला बंदा क्या कर रहा था, एक अकेला बंदा रिस्क ले रहा था, लेकिन अब ये दोनों भी मिलके क्या करेंगे, साथ में रिस्क लेंगे, तो इसके वजह से ऐसा होगा। उसके बाद में आप दोनों की भी मैनेजरल एबिलिटीज़ क्या होंगे, उस बिजनेस में यूज़ होंगी। तो ऐसे सारे बहुत सारे लिमिटेशंस होते हैं, तो उन लिमिटेशंस को ओवरकम करने के लिए अ बिजनेस और अ फर्म और अ पार्टनर्स एंटर इनटू अ पार्टनरशिप फर्म। ओके, ये हम लोगों ने देखा। वो लोग क्या करते, पर्सन ए एंड पर्सन बी विल स्टार्ट हिज ओन बिजनेस, ठीक है। वो लोग क्या करेंगे, दोनों भी मिलके साथ में एक अपना खुद का बिजनेस क्या करेंगे, शुरू करेंगे, समझे। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा व्हाट आर द लिमिटेशंस और किस तरीके से चीज़ें होती है, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने आप लोगों को सारी चीज़ें बताई यहाँ पर कि क्या क्या चीज़ें होती हैं, एंड व्हाट आर द लिमिटेशंस एंड व्हाट इज़ द पर्पस बिहाइंड एंटरिंग इनटू अ पार्टनरशिप फर्म। ओके, उसके बाद में आते हैं हम लोग मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप के ऊपर, ठीक है। तो इतना ज़्यादा रीड करने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग एक शॉर्ट में फास्ट रीड कर लेते हैं, ठीक है। पार्टनरशिप इज एन ऑर्गेनाइजेशन वेयर देर इज एन एसोसिएशन ऑफ 2 or more persons coming together to carry on a business with a view to share profit or loss of the firm. Now, partnership is nothing but it is an organization where there is an association of 2 or more person, मतलब 2 या फिर 2 से ज़्यादा लोग एसोसिएट यानी कि एक साथ में आते हैं, ठीक है। दोनों एक साथ में आकर फिर क्या करते हैं, अपने बिजनेस को चलाते हैं, एंड देयर मेन मोटिव इज टू अर्न व्हाट, प्रॉफिट को कमाने के लिए वो लोग क्या करते हैं, एक साथ में आते हैं और अपने रिस्क को बांटते हैं, ठीक है, लॉसेस को बांटने के लिए, ठीक है। तो यही बेसिक मीनिंग था, ठीक है। तो ये आप लोग समझ लेना। उसके बाद में डेफिनेशन इतना ज़रूरी नहीं है, ठीक है। हम लोग बढ़ते हैं उसके बाद में फिर सेकेंड स्लाइड के ऊपर। ओके, नाउ विल लर्न अबाउट द व्हाट आर द फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म। ओके, तो सबसे पहला फीचर है आपका एग्रीमेंट। पार्टनरशिप is a result of agreement between partners. It could be written or oral. A written agreement is preferred so that it can be used as a proof in the court of law, and such written agreement is known as partnership deed. Now the partnership or the agreement, it can be oral or it can be written, यानी कि आप रिटर्न में भी आप एग्रीमेंट कर सकते हैं, और ओरल में अगर कर रहे हैं तो आप बिजनेस, तो वो तो एग्रीमेंट नहीं होगा, ओरली ऐसे ही कहा जाएगा कि भाई हम लोग दोनों, बंदा ए है, ठीक है, एक कोई पर्सन ए है और पर्सन बी है, ये दोनों साथ में मिलके बिजनेस करना चाहते, तो अगर वो आपस में विश्वास है तो वो लोग आपस में ओरली यानी कि वर्बली मुंह से हो सकता है और बिजनेस शुरू कर सकते हैं। लेकिन इट इज़ ऑलवेज प्रिफरेबल टू हैव अ रिटर्न एग्रीमेंट, ठीक है, क्योंकि इन केस अगर फ्यूचर में कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं, पैसे है तो पैसे से रिलेटेड तो झगड़े वगैरह सब कुछ जो है वो होता ही होता है, आपस में भाई भाई लड़ जाता है, ठीक है। तो ऐसी सारी चीज़ें होती है, ठीक है। तो इसीलिए इट इज़ ऑलवेज प्रेफरेबल टू हैव अ रिटर्न एग्रीमेंट, ठीक है। हमेशा क्या है, रिटर्न एग्रीमेंट होना सही होगा, क्योंकि अगर इन केस फ्यूचर में कुछ अगर प्रॉब्लम आते हैं तो यू कैन यूज़ इट एज अ प्रूफ, ठीक है, प्रूफ के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है, ठीक है। अब उसके बाद में फिर सेकेंड पॉइंट इज नंबर ऑफ पार्टनर्स, ये सबसे ज़रूरी है, दैट इज नंबर ऑफ पार्टनर्स, मिनिमम 2 पार्टनर्स, ठीक है। मिनिमम कितने, 2 पार्टनर्स, मिनिमम 2 पार्टनर्स एंड मैक्सिमम 50 पार्टनर्स एंड मैक्सिमम 50 पार्टनर्स। अब ये सबसे ज़रूरी है, आई विल suggest you all to please underline this particular line, that is minimum 2 partners and maximum 50 partners, minimum 2 partners and maximum 50 partners, minimum 2 partners and maximum number of partners that is are 50। ये आपको ऑब्जेक्टिव में बोर्ड एग्जाम्स में आ सकता है कि मिनिमम 2 पार्टनर्स एंड मैक्सिमम 50 पार्टनर्स, ओके, यस। उसके बाद में फिर थर्ड है दैट इट द बिजनेस विच इज़ गोइंग टू बी
कैरिड आउट बाय द पार्टनर्स इट शुड बी अ लॉफुल बिजनेस। आप कोई भी इलीगल बिजनेस नहीं कर सकते। आप जो कोई भी बिजनेस करेंगे वो अकॉर्डिंग टू द स्टेट ऑफ लॉ होना चाहिए, ठीक है। यानी कि आपको क्या है, मान्यता उसकी मिलनी चाहिए, ठीक है। कोई भी इलीगल बिजनेस आप नहीं कर सकते। उसके बाद में फिर फोर्थ है शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एंड लॉसेस। नाउ इफ देयर इज मेंशन एनीथिंग अबाउट द प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इन द एग्रीमेंट, तो आप उस प्रपोर्शन में रेशो क्या कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। जैसे आपका मान लो कैपिटल रेशो में भी पैसे, मतलब जितने आप पैसे लेकर आएंगे उस प्रपोर्शन में भी आप अपने हिस्से को बांट सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल लेट अस सी कि कोई एक बिजनेस में 1,00,000 रुपए की ज़रूरत है, एक बंदा लेकर आया 60,000, एक बंदा लेकर आया 40,000, तो ये लोग अपनी क्या कर सकते हैं, कैपिटल रेशो में भी प्रॉफिट और लॉस को बांट सकते हैं। यानी कि जो कोई भी प्रॉफिट होगा ये 60% लेगा और जो कोई भी प्रॉफिट होगा ये 40% लेगा, ठीक है। ये प्रपोर्शन में बांट सकते हैं, राइट। उसके बाद में फिर अगर मान लो उसके बाद में फिर रेशो दिया होता है 2:3, ठीक है, 3:1, 1:1, दैट इज इक्वल रेशो, ठीक है। तो इस तरीके से बहुत सारे रेशोज दिए होते हैं, ठीक है। लेकिन अगर इफ देयर इज नथिंग मेंशन इन द एग्रीमेंट अबाउट द प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, नाउ दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर कोई भी चीज़ आपको मेंशन नहीं की गई है प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के बारे में, देन द प्रॉफिट, लेट अस सी, ये वाला लाइन बहुत सबसे इंपॉर्टेंट है। इफ द एग्रीमेंट इज साइलेंट अबाउट द रेशो देन द प्रॉफिट एंड लॉसेज आर शेयर इन द इक्वल रेशो, ठीक है। अब जब कभी भी अगर प्रॉफिट और लॉस के बारे में नहीं दिया गया है कि किस रेशो में प्रॉफिट और लॉस शेयर किया जाएगा एग्रीमेंट में, तो आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है, इक्वल रेशो में प्रॉफिट और लॉस को शेयर किया जाएगा, ओके। ये हो गया। उसके बाद में फिर हम लोग नेक्स्ट इस पर आते हैं, ठीक है। अनलिमिटेड लाइबिलिटीज़, यानी कि पार्टनर्स की जो लाइबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड होती है। अनलिमिटेड इन द सेंस व्हाट, कि अगर पार्टनर्स की बिजनेस की कोई भी लाइबिलिटी है तो वो उनके जेब में जितने आखिर तक पैसे होंगे उतने तक वो क्या होंगे, उस लाइबिलिटी के लिए लाइबल होंगे। यानी कि वो अपने पर्सनल प्रॉपर्टीज़ बेच सकते हैं, ठीक है। वो अपनी पर्सनल प्रॉपर्टीज़ बेच सकते हैं। अगर बिज़नेस, पहले तो क्या होगा, बिज़नेस के सारे एसेट्स, ओके, बिज़नेस की अपनी बिल्डिंग होंगी, बिज़नेस के अपने फर्नीचर होंगे, बिज़नेस के अपने व्हीकल होंगे, बिज़नेस के अपने फॉर एग्जांपल प्लांट एंड मशीनरीज होंगे। तो सारे पहले तो उनको सारे को बेचा जाएगा अगर कोई लाइबिलिटी है तो वो चुकाने के लिए। और अगर वो बेचकर भी अगर पैसे नहीं चुकते कर पाते अगर पार्टनर्स, तो उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी पर भी क्या किया जाएगा, बेचकर उसके पैसे चुकाए जाएंगे, ठीक है। उनका पर्सनल उसमें घर जा सकता है, ठीक है। उसके बाद में फिर उनके पर्सनल बैंक अकाउंट में जो पैसे होंगे वो जा सकते हैं, ठीक है। तो ऐसी सारी चीज़ें हो सकती है, उसी को बोलते हैं हम लोग अनलिमिटेड लाइबिलिटी। लेकिन एक अगर कंपनी की बात करें तो कंपनी में ऐसा नहीं होता है, ठीक है। कंपनी में द लाइबिलिटी इज़ लिमिटेड, यानी कि जो कोई भी कंपनी के अपने खुद के शेयर्स है या फिर कंपनी के अपनी खुद की प्रॉपर्टीज़ है, कंपनी के अपनी खुद की बिल्डिंग है, कंपनी के अपनी खुद की इन्वेस्टमेंट है, तो वो सारी चीज़ें बेचकर ही बिजनेस की जो होगी वो लाइबिलिटी चुकाई जाएगी। अगर वो भी उससे भी अगर लाइबिलिटी नहीं हो रही है चुकती, तो फिर पर्सनल प्रॉपर्टीज़ यूज़ नहीं की जाती, पर्सनल प्रॉपर्टीज़ यूज़ नहीं की जाती, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना, तो इसीलिए इसको बोलते हैं अनलिमिटेड लाइबिलिटी। उसके बाद में फिर द नेक्स्ट पॉइंट इज रजिस्ट्रेशन। नाउ if the business or the partnership business is in Maharashtra, then it is compulsory from 1st of April 2005, and if it is outside of Maharashtra तो आपको रजिस्ट्रेशन करना कंपलसरी नहीं है, वो टोटली आपके ऊपर निर्भर करता है, ओके। उसके बाद में 7th इज जॉइंट ओनरशिप एंड मैनेजमेंट, की बिजनेस क्या किया जाता है, जॉइंटली मैनेज किया जाता है, और द ओनरशिप आर बोथ द पार्टनर्स, बोथ या फिर जितने भी पार्टनर्स होंगे वो जॉइंटली उसके ओनरशिप उनके हाथ में होगी, और सारे मैनेजमेंट की जिम्मेदारी भी क्या होगी, सबको एक साथ में क्या होगी, सबके ऊपर होगी, ठीक है। उसके बाद में फिर प्रिंसिपल एंड एजेंट। आप जैसे फॉर एग्जांपल प्रिंसिपल एंड एजेंट, व्हाट इज प्रिंसिपल एंड एजेंट, तो जैसे आपस में फॉर एग्जांपल देखो क्या हो रहा है यहाँ पर, प्रिंसिपल एंड एजेंट, इसका मतलब कि एक पार्टनर है अगर, तो वो दूसरे लोगों के लिए यानी वो आउटसाइडर्स के लिए क्या होगा, एक प्रिंसिपल की तरह काम करेगा। नो व्हाट इज प्रिंसिपल, तो वो एक बिजनेस के रिप्रेजेंटेटिव की तरह काम करेगा, यानी वो बिजनेस
को चला रहा है इसके हिसाब से काम करेगा। एंड इफ़ अगर वो पार्टनर है तो अपने पार्टनर्स के साथ में कैसे काम करेगा, तो एक एजेंट की तरह काम करेगा, यानी ये इसका काम कर रहा है और ये इसका काम कर रहा है, तो इस तरीके से आपस में वो लोग क्या होंगे, एक एजेंट की तरह काम करेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ें हो गई। उसके बाद में फिर हम लोग आगे देखते क्या है, स्लाइड नंबर 3 पर आते हैं। ठीक है, यस, स्लाइड नंबर 3। ओके, द लास्ट फीचर इज डिसोल्यूशन। अब ऐसे बहुत सारे देयर आर डिफरेंट रीजंस बिहाइंड द डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म। इट कैन बी आई एम सो सॉरी। ठीक है, अब ये डिफरेंट रीजंस हो सकते हैं। ठीक है, कि वो डिज़ोल्व अपने मर्जी से भी कर सकते हैं। मान लो कोई पर्सन ए है और पर्सन बी है। ठीक है, ये दोनों भी क्या कर रहे थे, आपस में बिजनेस कर रहे थे। अब पर्सन ए है, पर्सन बी है। अब मान लो पर्सन ए ने बिजनेस कर लिया, अब वो कोई और बिजनेस करना चाहता है, तो बट ऑब्वियस ये पार्टनरशिप को डिसॉल्व करके वो आसानी से अपना खुद का बिजनेस क्या कर सकते हैं, शुरू कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में फिर बहुत सारे रीजंस होते हैं। अगर आपका बिजनेस इलीगल है तो बट ऑब्वियस वो अकॉर्डिंग टू द लॉ वो आपको डिसॉल्व करना पड़ेगा। डिसॉल्व इन द सेंस व्हाट, आपको वो बंद करना पड़ेगा। ठीक है, वो बिजनेस को आपको बंद करना पड़ेगा। उसके बाद में फिर रिटायरमेंट है। अगर मान लो कोई बंदा रिटायर होना चाहता है, यानी वो मान लो बूढ़ा हो गया, वो रिटायर हो गया, उसके बाद मान लो किसी पर्सन की डेथ हो गई, किसी एक पार्टनर की, तो अपने आप वो पार्टनरशिप क्या हो जाएगी, डिसॉल्व हो जाएगी। मान लो एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए आप लोग एक साथ में, फॉर एग्जांपल मान लो एक पर्टिकुलर हाईवे बांधने के लिए या फिर एक पर्टिकुलर एक्सप्रेस वे ब्रिज बांधने के लिए या फिर मेट्रो का काम करने के लिए एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए पर्सन ए पर्सन बी ने दोनों साथ में पार्टनरशिप की। अब ये पर्टिकुलर प्रोजेक्ट क्या हो गया, ख़त्म हो गया, कंप्लीट हो गया पूरी तरीके से, तो वो पार्टनरशिप अपने आप क्या हो जाएगी, डिसॉल्व हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से ऐसे बहुत सारे मेथड्स होते हैं, वो हम लोग आगे आगे पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद में फिर होता है पार्टनरशिप डीड। द नेक्स्ट इज पार्टनरशिप डीड। क्या होता है पार्टनरशिप डीड, वो हम लोग देखेंगे। ठीक है, नाउ पार्टनरशिप डीड इज नथिंग बट इट इज एन एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स। जब कभी भी व्हेन देयर इज एन रिटर्न एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर, इट इज नोन एज पार्टनरशिप डीड। वो जो रिटर्न एग्रीमेंट होता है, ये जो आपको दिख रहा है, ये जो रिटर्न एग्रीमेंट है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पार्टनरशिप डीड बोलते हैं। तो सम टाइम देयर आर सम चांसेस दैट दिस क्वेश्चन में कम इन वन सेंटेंस फॉर द बोर्ड एग्जाम। ठीक है, कि व्हाट इज पार्टनरशिप डीड, द डॉक्यूमेंट कंटेनिंग द पार्टनरशिप एग्रीमेंट अमॉन्ग द पार्टनर इज कॉल्ड एज पार्टनरशिप डीड। ठीक है, ओके। नाउ देयर आर व्हाट आर द कंटेंट्स ऑफ पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड के क्या क्या कंटेंट होते हैं, तो आप लोग वन बाय वन पढ़ लेना, लेकिन उसके बावजूद भी मैं एक थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करता हूँ। नेम एंड एड्रेस ऑफ द फर्म एंड इट्स मेन बिजनेस। पहले तो आपकी पार्टनरशिप फर्म का नाम, उसका मेन एड्रेस, कहाँ पर उसका ऑफिस है। ठीक है, एंड मेन बिजनेस, क्या बिजनेस कर रहे हो आप लोग। ठीक है, उसके बारे में, आप लोग कोई क्लासेस चला रहे हो, आप लोग कोई इंस्टीट्यूशन चला रहे हो, आप लोग कोई क्लब चला रहे हो, तो ऐसी सारी चीज़ें होती है। ठीक है, उसके बाद में द सेकंड वन इज नेम एंड एड्रेस ऑफ ऑल द पार्टनर्स एंड ड्यूरेशन ऑफ द पार्टनरशिप। सारे पार्टनर जितने भी है, 2 3 4, उनका अपना अपना सारा डिटेल्स, यानी कि उनका नाम, उनका एड्रेस, वो कहाँ पर रहते हैं। ठीक है, उसके बाद में फिर व्हाट आर द ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप। एक पर्टिकुलर बिजनेस के लिए, एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए 2 साल 3 साल 1 साल, कितने साल के लिए आप पार्टनरशिप फर्म बिजनेस में आ रहे हो। उसके बाद में फिर थर्ड इज कैपिटल कंट्रीब्यूशन ऑफ ऑल द पार्टनर्स। कितना कितना पैसा हर पार्टनर ने अपने बिजनेस में इन्वेस्ट किया है, कैपिटल। ठीक है, वो। उसके बाद में फोर्थ इज रेशियो इन विच प्रॉफिट्स एंड लॉसेज आर टू बी शेयर्ड। किस प्रोपोर्शन में प्रॉफिट को इसी को बांटा जाएगा। ठीक है, 1:1 प्रोपोर्शन में, 2:1 प्रोपोर्शन में, या फिर उनके कैपिटल रेशियो में। ठीक है, तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती है। ठीक है, तो उसके भी बारे में क्या हो जाएगा, जानकारी यहाँ पर दी जाएगी। ओके, उसके बाद में फिर द फिफ्थ वन इज राइट्स एंड लाइबिलिटीज़ ऑफ द पार्टनर्स। राइट, ड्यूटीज़ एंड लाइबिलिटीज़ ऑफ द पार्टनर्स, सारे राइट्स और ड्यूटीज़ के बारे में, ठीक है, जानकारी दी जाएगी। सिक्स वन इज प्रोविजन रिलेटेड टू एडमिशन, रिटायरमेंट, डेट एक्सेट्रा ऑफ द पार्टनर। यानी कि अगर एक बंदा एडमिट हो रहा है, यानी कि नया बंदा, फॉर पर्सन ए है, पर्सन बी है, और पर्सन सी क्या करना चाहता है, बिजनेस में आना चाहता है, तो उससे रिलेटेड क्या क्या प्रोविजंस होंगे, क्या क्या प्रोसीजर्स फॉलो किए जाएंगे। अगर पर्सन ए है, पर्सन बी है, पर्सन बी बिजनेस से जाना चाहता है, ठीक है, तो उसका रिटायरमेंट या फिर उसकी डेथ हो गई, तो क्या क्या प्रोसीजर्स फॉलो किए जाएंगे, और ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती है। ठीक है, और डिसोल्यूशन, अगर बिजनेस बंद होता है तो वो सारी चीज़ें। ठीक है, उसके बाद में फिर है रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लोन ड्राइंग एक्सेट्रा।
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यानी कि बिजनेस में जो पैसा इन्वेस्ट किया जा रहा है पार्टनर्स से, तो उसके ऊपर बिजनेस क्या उनको इंटरेस्ट पे करेगा या नहीं करेगा, वो सारी चीज़ों के बारे में। अगर कोई पार्टनर अपने बिजनेस को लोन दे रहा है, ठीक है, तो वो बिजनेस उनको इंटरेस्ट पे करेगा या नहीं करेगा, ये सारी चीज़ें होती है, ठीक है। तो उसके बाद में फिर ड्राइंग्स कितना इंटरेस्ट पे करेगा, ये सारी चीज़ों के बारे में लिखा जाता है, ओके। उसके बाद में फिर 8th हम लोग देखते हैं सैलरी, कमीशन एक्सेट्रा इफ पेएबल टू एनी पार्टनर। अगर कोई भी किसी भी पार्टनर्स को सैलरी दी जा रही है, कमीशन दिया जा रहा है, तो उसके बारे में मेंशन किया जाएगा, ठीक है। द 9th वन इज सेटलमेंट ऑफ अकाउंट ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म। अगर कोई भी आपका फर्म मान लो क्या करता है, किसी भी रीज़न की वजह से डिसॉल्व हो जाता है यानी बंद हो जाता है, ठीक है, तो फिर क्या क्या प्रोसीजर्स होंगे और कैसे आपका अकाउंट सेटल किया जाएगा। अकाउंट सेटलमेंट इन द सेंस व्हाट, कि आपकी जो कोई भी आपने कैपिटल इन्वेस्टमेंट किया है अभी तक का, जो कोई भी आपका एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट का हिस्सा है, सारी चीज़ों का आपका कैसे सेटलमेंट किया जाएगा, आपकी कैसे पैसे चुकते किए जाएगा, ठीक है। उसके बाद में फिर द 10th वन इज मेथड ऑफ सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स अमंग द पार्टनर्स। अगर कोई भी आपस में क्या हो जाता है, मतभेद, डिस्प्यूट इन द सेंस वो झगड़ा हो जाता है, मतभेद हो जाते हैं, तो उसको कैसे डिसॉल्व, उसको कैसे सेटल किया जाएगा, उसके बारे में भी हम लोग उसमें मेंशन होगा, ठीक है। उसके बाद में फिर 11th वन इज एनी अदर मैटर, मतलब कि और भी कोई अगर क्या है जानकारी है वो सारी क्या होगी पार्टनरशिप डीड में मेंशन होगी, ठीक है। तो ये था ओवरऑल पार्टनरशिप डीड हम लोगों ने देखा क्या है, ठीक है। उसके बाद में फिर 4th स्लाइड पर हम लोग आते हैं प्रोविजन ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, ओके। अब कुछ प्रोविजंस है वो ज़रूरी है, प्रोविजन इन द सेंस व्हाट, कुछ रूल्स है, कुछ प्रिंसिपल्स है वो आपको फॉलो करने होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। अब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट क्या बोलता है कि अगर पार्टनरशिप डीड में उसके बारे में मेंशन किया गया है, इफ देयर इज अ क्लॉज मेंशन अबाउट द पार्टनरशिप प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो उस प्रोपोर्शन में बांटा जाएगा। बट इफ देयर इज नथिंग मेंशन इन द पार्टनरशिप डीड, देन उनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा वो कैसे होगा, इक्वल रेशो में होगा। कैसे होगा, इक्वल रेशो में होगा, ओके। बस ये था। उसके बाद में फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, तो अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, दैट इज़ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। आप प्लीज़ इसको अंडरलाइन करके लेना, ठीक है, इक्वल रेशो को, ठीक है। यहाँ पर मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, पार्टनरशिप इज इक्वल रेशो, अगर कोई भी चीज़ के बारे में बताया नहीं गया है, ठीक है। अभी मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। उसके बाद में फिर सेकंड वन, दैट इज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अब ये सबसे ज़रूरी चीज़ है कि अगर मान लो फॉर एग्जांपल दे हैव गिवन यू इन द क्वेश्चन दैट पर्टिकुलर लेट अस सी दैट 5% इंटरेस्ट इज चार्ज ऑन ड्राइंग, बट लेकिन आपको कोई भी जानकारी नहीं दी है, दे हैव नॉट गिवन यू द डिटेल अबाउट कि कितने तारीख को या फिर कब जो है वो पर्टिकुलर पर्सन ने वो ड्राइंग किया है, ठीक है। तो फिर ऐसे केस में क्या होगा, तो रूल या फिर प्रोविजन क्या बोलते हैं ऑफ द पार्टनर्स इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 कि आपको कंसीडर करना है देन द एवरेज 6 month ऑफ इंटरेस्ट इज चार्ज ऑन द ड्राइंग, ठीक है। इफ द डेट ऑफ द ड्राइंग इज नॉट गिवन, देन एवरेज आपको कंसिडर करके चलना है। कितने महीने, 6 महीने क्या होंगे, हम लोग कंसिडर करके चलते हैं कि एवरेज 6 महीने के, जैसे मान लो 5% इंटरेस्ट है तो 5% इंटू 6 डिवाइड बाय 12, ओके। तो हम लोग सीखेंगे जब आएगा तब, बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आप लोगों को सारी चीज़ें सिखाऊंगा। प्लीज़ इसको अंडरलाइन करके लेना, ठीक है, मैं इरेज कर दे रहा हूँ। उसके बाद में फिर हम लोग आते हैं थर्ड, दैट इज़ व्हाट, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। तो यूजुअली क्या होता है, अगर कुछ भी चीज़ मेंशन नहीं है लेकिन लॉ या फिर प्रोविजन बोलता है कि आपको 6% क्या करना पड़ता है, इंटरेस्ट देना पड़ता है अगर पार्टनर्स ने आपको एडिशनल लोन दिया हुआ है। कैपिटल टोटली अलग होता है, कैपिटल जो होता है वो टोटली इट इज़ डिफरेंट, और जो एक्स्ट्रा एडिशनल पैसे दिए जाते हैं, एडिशनल एक्स्ट्रा, उसको हम लोग बोलते हैं लोन, ठीक है। तो जो एडिशनल पैसे पार्टनर्स अपने बिजनेस को दिएगा कैपिटल को छोड़कर, तो उसके ऊपर बिजनेस को क्या करना पड़ता है, पार्टनर्स को इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, ठीक है। तो वो कितना होगा, 6% पर एनम इंटरेस्ट पे करेंगे, ओके। तो उसको प्लीज़ अंडरलाइन करके लेना। उसके बाद में फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो यूजुअली कोई भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाता है, अगर है तो फिर वो आपके पार्टनरशिप डीड में मेंशन होगा तो दिया जाएगा, अगर कुछ बारे में नहीं बोला गया तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा। उसके बाद में फिर सैलरी एंड कमीशन, तो सैलरी एंड कमीशन अगर किसी पार्टनर्स को दिया जा रहा है तो वो दिया जाएगा, अगर नहीं है तो फिर उसके बारे में कोई जानकारी नहीं। एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, तो वो बहुत सारी चीज़ें होती है, लेकिन ये कोई भी, जैसे मान लो बंदा ए है, बंदा बी है, ठीक है, और ए का कोई दोस्त है सी, या फिर मान लो बी का कोई दोस्त है सी।
अब ए और बी दोनों का बिजनेस है, ठीक है, इन दोनों का पर्टिकुलर बिजनेस है। अब बी का ये सी जो है वो बी का दोस्त है, बी बोल रहा है कि भाई चल तू आ जा मेरे बिजनेस में, तो ऐसा नहीं होगा। तो इट शुड बी ऑलवेज सी कैनॉट एंटर्ड इनटू द बिजनेस टिल दे कंसर्न्ड ऑफ ए, ठीक है, यही चीज़ लिखी गई यहाँ पर, दैट no outside persons can be admitted into the firm as a partner without the consent of other partner। जब तक B जो है वो ए की परमिशन नहीं लेता तब तक C को पार्टनरशिप फर्म में एडमिट नहीं कर सकता, यानी अपने पार्टनरशिप फर्म में उसको जोड़ नहीं सकता, ठीक है। तो ये बहुत सारी चीज़ें थी, ठीक है। तो आप लोगों ने हम लोग बहुत तरीके से अच्छी तरीके से हम लोगों ने यहाँ पर देखा, ओके। उसके बाद में एक और ज़रूरी चीज़ आ जाती है, दैट इज़ व्हाट मेथड्स ऑफ कैपिटल अकाउंट, कि किस तरीके से कैपिटल अकाउंट मेंटेन किए जाते हैं। देयर आर ओनली टू मेथड्स ऑफ कैपिटल अकाउंट। द फर्स्ट वन इज़ फिक्स कैपिटल मेथड एंड द सेकेंड वन इज़ फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। अब सबसे पहला फिक्स कैपिटल मेथड क्या होता है, ठीक है। अब फिक्स कैपिटल मेथड इज़ नथिंग बट यहाँ पर आपका जो ओवरऑल जो शुरुआत में कैपिटल इन्वेस्टमेंट होगा वो थ्रू आउट द ईयर टिल द एंड ऑफ द ईयर क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। यहाँ पर पार्टनर्स अपना कैपिटल विड्रॉ नहीं कर सकते या फिर और एडिशनल कैपिटल बिजनेस में नहीं लेकर आ सकते, उसी को हम लोग बोलते हैं फिक्स कैपिटल मेथड। लेकिन अब यहाँ पर क्या होता है, एक प्रोसीजर जो होता है वो टोटली अलग हो जाता है, ठीक है। अब आप यहाँ पर आपको क्या करना पड़ता है, यहाँ पर आपको एक मिनट, यस, यहाँ पर आपको क्या करना पड़ता है, तो यहाँ पर आपको कैपिटल अकाउंट जो है वो उसका बैलेंस जो है वो डायरेक्ट लाइबिलिटी साइड पर लिखना पड़ता है, बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड पर। लेकिन अब आपको क्या करना पड़ता है, एक अलग से करंट अकाउंट बनाना पड़ता है, ठीक है। और फिर उस करंट अकाउंट का बैलेंस आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, आप कैपिटल अकाउंट भी बना सकते हैं और करंट अकाउंट भी बना सकते हैं, लेकिन आई थिंक सो इट विल बी यूजलेस। तो आप क्या करो, डायरेक्ट कैपिटल अकाउंट का बैलेंस क्या करो, डायरेक्ट लाइबिलिटी साइड पर लिखा करो। लेकिन जो करंट अकाउंट का बैलेंस आएगा तो वो करंट अकाउंट में आपको क्या क्या चीज़ें करनी है, क्या क्या चीज़ें नहीं करनी है, मैं अभी बता देता हूँ, ठीक है। तो अब जैसे लेट अस सी कि हम लोगों ने शुरुआत में देखा पार्टनर्स को क्या क्या पैसे मिल सकते हैं। जैसे मान लो पार्टनर्स का अपना कैपिटल है, ठीक है, तो वो आप पार्टनर्स करंट अकाउंट के क्रेडिट साइड पर लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन करके, ठीक है, तो उसको लिखा जाएगा, ठीक है, क्रेडिट साइड पर, ओके। उसके बाद में फिर मान लो इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है, तो वो लिखा जाएगा। उसके बाद में फिर मान लो इंटरेस्ट पार्टनर्स का कमीशन है, ठीक है। उसके बाद में फिर मान लो पार्टनर्स का इंटरेस्ट ऑन लोन है, पार्टनर्स ने बिजनेस को लोन दिया हुआ है तो उसके ऊपर इंटरेस्ट है, तो वो। उसके बाद में मान लो पार्टनर्स की किसी की सैलरी है तो वो। उसके बाद में फिर प्रॉफिट का हिस्सा, अब जो कोई भी वो सारा क्या होगा पार्टनर्स करंट अकाउंट के क्रेडिट साइड से दिया जाएगा और फिर उसको बैलेंस करके जो बैलेंस आएगा वो बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड पर शो किया जाएगा, ठीक है। बस यही चीज़ होती है, बहुत ही सिंपल होता है। मैं सारी चीज़ें आप लोगों को वन बाय वन जब आएगा तब सब में सिखाऊंगा कैसे चीज़ें होती है, ठीक है। अब एक और चीज़ कि आपको ये पहचानना कैसे है, ठीक है, कि एग्ज़ाम में कौन सा मेथड आया हुआ है, ठीक है, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड आया या फिक्स कैपिटल मेथड आया। तो बहुत ही आसान है, आपको जो एग्ज़ाम के क्वेश्चन में ट्रायल बैलेंस दिया होता है तो वो ट्रायल बैलेंस में देखने का क्रेडिट साइड पर या फिर डेबिट साइड पर आपको अगर सिर्फ कैपिटल लिखा गया है, सिर्फ आपको कैपिटल बैलेंस दिया गया कैपिटल अकाउंट का, तो इसका मतलब वो कौन सा मेथड, इट इज़ फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, ठीक है। और जो कोई भी आप एडजस्टमेंट अभी करेंगे जो मैंने अभी सारे बताए, सैलरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है, कमीशन, वो सारी चीज़ें आप कैपिटल अकाउंट से करेंगे। लेकिन अगर आपको क्या किया गया, लेकिन अगर आपको आपके ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट साइड पर या तो डेबिट साइड पर बैलेंस दोनों भी तरफ दिया होता है, ठीक है, वो चेक करने का। कभी कभार एक पार्टनर का डेबिट भी बैलेंस हो सकता है और एक पार्टनर का क्रेडिट भी हो सकता है, ठीक है, वो हम लोग धीरे धीरे समझेंगे। अगर क्वेश्चन में आपको ट्रायल बैलेंस में कैपिटल अकाउंट के बैलेंस भी दिए गए और करंट अकाउंट के बैलेंस भी दिए गए, ठीक है, तो अब यहाँ पर आपको ये ऐसा है कि ये कौन सा मेथड है, फिक्स कैपिटल मेथड है। अब यहाँ पर आपको जो कोई भी एडजस्टमेंट है जो मैंने कहा अभी जो सारे बताए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, उसके बाद में फिर कमीशन, वो सारे अब क्या होंगे करंट अकाउंट से सेटल होंगे और फिर उसको बैलेंस करके फिर उनके बैलेंस दिए जाएंगे, ठीक है। तो ये था ओवरऑल आज का लेक्चर। तो अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगर ये वीडियो आपको यूज़फुल रहा होगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा
और अगर आप इसी तरीके के वीडियोस चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स को शेयर ज़रूर करना। थैंक यू सो मच।